اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسریٰ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو پوری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ دیا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینے بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ علیہ السلام کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تھے اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ علیہ السلام کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا، گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینے میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ علیہ السلام سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کیا اور حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ وفات ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے، انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا ہے۔ خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، جا کر دیکھو، مذہب جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بناتا ہے، چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مذہب کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی سے تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کے طرز
के जुमले सुनाता और कहता कि उसके पास एक फरिश्ता आया है जो उसे हर रोज खुदा की तरफ से एक आयत और राज की एक दो बातें बता देता है। वो लोगों को अपने मौजे भी दिखाया करता था। मसलन जलती हुई मशल अपने मुंह में डाल लिया करता और जब मशल उसके मुंह से निकलती तो वो जल रही होती थी। उसने एक लड़की को हवा में मौल्लक करके दिखा दिया। ऐसे ही चंद और शोबदे थे जो वो लोगों को दिखाता और लोग उन्हें मौजज़ा कहते। एक तो वो चर्ब ज़बान था, दूसरे वो खुश इल्हाम था। उसके बोलने का अंदाज पुरकशिश था। उसने यमन वालों को ये नारा देकर कि यमन वालों का है, उनके दिल मोह लिए थे। यमनी बड़ी लंबी मुद्दत से ईरानियों के ज़ेरे नगी चले आ रहे थे। ईरानी तसल्लुत बाज़ान के कबूल इस्लाम के साथ ही खत्म हो गया तो हिजाज के मुसलमान आ गए। उसके अलावा वहाँ यहूदी, नसरानी और मजूसी भी मौजूद थे। ये सब इस्लाम की बेखुनी चाहते थे। उन्होंने असवद अंसी की नबुव्वत के कदम जमाने में दरपर्दा बहुत काम किया। असवद अपनी नबुव्वत की सदाकत एक गधे के जरिए साबित किया करता था। उसके सामने एक गधा लाया जाता, वो गधे को कहता बैठ जा, गधा बैठ जाता, फिर कहता मेरे आगे सर झुका, गधा सजदे के अंदाज से सर झुका देता। गधे के लिए उसका तीसरा हुक्म होता मेरे आगे घुटने टेक दे, गधा उसके आगे घुटने टेक देता। देखते ही देखते असवद अंसी को यमन के लोगों ने नबी मान लिया। असवद ने उन लोगों को एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर लिया। उसने सबसे पहले नजरान का रुख किया। वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए दो मुसलमान हाकिम थे, खालिद बिन सईद और अमर बिन हज़म। असवद के साथ बहुत बड़ा लश्कर था जो नजरान में दाखिल हुआ तो वहाँ के बाशिंदे भी उसके साथ मिल गए। दोनों मुसलमान हाकिमों के लिए पसपाई के सिवा कोई चारा नहीं था। असवद अंसी इस पहली फतह से सरशार हो गया और उसके लश्कर की तादाद भी ज्यादा हो गई। उसने नजरान में अपनी हुकूमत कायम करके सना की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। वहाँ बाजान का बेटा शहर हुक्मरान था। उसके पास फौज थोड़ी थी, फिर भी वो मुकाबले में डट गया। उसकी ललकार ने अपनी फौज के कदम न उखड़ने दिए, लेकिन शहर बिन बाजान चूंकि अपनी फौज का हौसला कायम रखने के लिए सिपाहियों की तरह लड़ रहा था, इसलिए वो शहीद हो गया। इससे उसकी फौज का हौसला टूट गया। असवद के खिलाफ लड़ने वाले वो यमनी भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन शिकस्त की सूरत में जान का खतरा मुसलमानों को था। उन्हें असवद के लश्कर के हाथों कत्ल होना था। असवद किसी मुसलमान को नहीं बख्शता था। चुनाचे मुसलमान जाने बचा कर निकल गए और मदीने जा पहुंचे। असवद अंसी जो अब रहमानुल यमन कहलाता था, हज़रमौत, बहरेन, अहसा और अदन तक के तमाम इलाकों पर भी कब्जा करके तमाम यमन का बादशाह बन गया। इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुमाल की तरफ से रूमियों के हमले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। उस खतरे को खत्म करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रूमियों पर हमले के लिए तैयार किया था, जिसके सालार आला 22 साला नौजवान उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद किए हुए गुलाम ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी सालार थे और वो मौता के मार्के में शहीद हुए थे। यमन को एक खुद साख्ता नबी से निजात दिलाने के लिए बहुत बड़े लश्कर की जरूरत थी, लेकिन लश्कर रूमियों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा था। अगर रूमियों पर हमले मुलतवी करके उस लश्कर को यमन भेज दिया जाता तो रूमी ये फायदा उठा सकते थे कि मदीने पर हमला कर देते। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरत ये सोची कि यमन में जो मुसलमान मजबूरी के तहत रह गए हैं और जिन्होंने असवद अंसी की इताअत कबूल कर ली है, उन्हें असवद का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरीक़ाकार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सालारों ने पसंद किया। इस मकसद के लिए चंद ज़हीन किस्म के अफराद को यमन भेजना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब कैस बिन हुबैरा पर पड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाकर यमन जाने का मकसद समझाया और पूरी तरह ज़हन नशीन करवाया कि उन्हें अपने आप को छुपाकर वहाँ के मुसलमानों से मिलना है और एक जमींदोज जमात तैयार करनी है जो उस झूठे नबी और ऐशो इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उल्टे। आप अलैहिस्सलाम ने कैस बिन हुबैरा से ये भी कहा कि वो मदीने से अपनी रवानगी को भी खुफिया रखें और यमन तक इस तरह पहुँचे कि उन्हें कोई देख न सके। इस पुरखतर मुहिम को और ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबर बिन यहनस को एक खत देकर ये कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत असवद की इताअत कबूल की है। ये खत उन्हें पढ़वा कर जाया कर देना और बाकी काम कैस बिन हुबैरा करेंगे। असवद अंसी ने जब सिना पर हमला किया था तो वहाँ के हाकिम शहर बिन बाजान ने मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया था। उसकी जवान साल बीवी जिसका नाम आजाद था, असवद के हाथ चढ़ गई। आजाद गैर मामूली तौर पर हसीन ईरानी औरत थी।
उसने असवद को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन असवद ने उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया। आजाद अब उस शख्स की असीर थी जिससे वो इंतहा दर्जे की नफरत करती थी। अकेली औरत कर भी क्या सकती थी। उसकी खुशनसीबी सिर्फ इतनी थी कि असवद औरतों का दिल दादा था। उसने अपने हरम में 20 औरतें रखी हुई थी। उसे तोहफे में भी नौजवान लड़कियां मिला करती थी। वो हर वक्त औरत और शराब के नशे में बदमस्त रहता। आप अलैहिस्सलाम के भेजे हुए कैस बिन हुबैरा चोरी छुपे सफर करके और भेस बदल कर सना पहुँचे। असवद ने सना को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। उधर दुबर बिन जहनस एक मुसलमान सरदार के यहाँ खत लेकर पहुँच गए। उस मुसलमान सरदार ने ये यकीन तो दिला दिया कि वो ऐसे चंद एक मुसलमान सरदारों को इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने दिल से असवद की इताअत कबूल नहीं की। लेकिन असवद का तख्ता उलटना मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ बादशाह ही नहीं, यमन के बाशिंदे उसे अपना नबी मानते थे। कैस बिन हुबैरा एक ऐसे ठिकाने पर पहुँच गया जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई मुसलमान मौजूद थे। उन मुसलमानों ने भी वही बात कही जो मुसलमान सरदार ने कही थी, लेकिन उन मुसलमानों ने ऐसी कोई बात न कही कि वो उस जमी दोस्त तहरीक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पुरअज़्म लहजे में कहा कि वो खुफिया तरीके से वफादार मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे। एक मुसलमान ने कहा, हम इस झूठे नबी को खत्म करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। क्या तुम लोग ये नहीं सोच सकते कि उस शख्स को कत्ल कर दिया जाए? एक और मुसलमान ने पूछा, कत्ल कौन करेगा और उसे कहाँ कत्ल किया जाएगा? वो महल के बाहर निकलता ही नहीं। ये भी मालूम हुआ है कि महल के इर्द गिर्द मुहाफिजों का बड़ा सख्त पहरा होता है। क्या हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे? कत्ल का मशवरा देने वाले मुसलमान ने पूछा, इस तरह जान देने से क्या हासिल कि जिसे कत्ल करना है उस तक पहुंच ही न सके। उस मुसलमान ने कहा, बहरहाल हमें खुफिया तरीके से ये तहरीक चलानी है कि कम से कम मुसलमान बगावत के लिए तैयार हो जाएं। असवद अंसी ने यमन पर कब्जा करके पहला काम ये किया था कि ईरान के शाही और दीगर आला खानदानों के जो ईरानी उसके हाथ चढ़ गए थे उन्हें उसने मुख्तलिफ तरीकों से जलीलो ख्वार करके रख दिया। उनकी हालत जरखरीद गुलामों से बदतर कर दी। लेकिन असवद की हुकूमत में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास न कोई तजर्बाकार सालार था, न कोई कारोबार हुकूमत चलाने वाला आदमी। ये खतरा तो वो हर लम्हा महसूस करता था कि मुसलमान उस पर हमला करेंगे। वो खुद अस्करी जहन नहीं रखता था। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे ईरानियों का ही ताउन हासिल करना पड़ा। उसके सामने 3 नाम आए। इनमें एक ईरानी का नाम कैस बिन अब्द गौस था, जो बाज़ान के वक्तों का माना हुआ सालार था। दूसरे 2 हुकूमत चलाने में महारत रखते थे। एक था फिरोज और दूसरा था दाजोया। फिरोज ने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो सही मानों में और सच्चे दिल से मुसलमान था। असवद ने कैस बिन अब्द गौस को सालार आला बना दिया और फिरोज और दाजोया को वजीर मुकर्रर किया। तीनों ने असवद की वफादारी का हल्फ उठाया और उसे यकीन दिलाया कि वो हर हालत में उसके वफादार होंगे। एक रोज फिरोज बाहर कहीं घूम फिर रहा था कि एक गदागर ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ फैलाया। फिरोज ने उसे कहा, तू मुझे माजूर तो नहीं नजर आता। अगर तू माजूर है तो तेरी माजूरी यही है कि तुझ में गैरत और खुददारी नहीं। गदागर ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तूने ठीक पहचाना है। मेरी माजूरी यही है कि मेरी गैरत मुझसे छिन गई है और मैं देख रहा हूँ कि तेरी भी यही माजूरी है। मैंने भीख के लिए हाथ नहीं फैलाया, मैं अपनी गैरत वापस मांग रहा हूँ। फिरोज ने गदागर से पूछा, अगर तू पागल नहीं हो गया तो मुझे बता दे तेरे दिल में क्या है। गदागर ने फिरोज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे दिल में अल्लाह के उस रसूल का नाम है जिसका तू शहदाई है। अगर असवद अंसी की शराब तेरी रगों में चली नहीं गई तो मैं झूठ नहीं कह रहा कि तूने दिल पर पत्थर रखकर असवद की वजारत कबूल की है। फिरोज ने इधर उधर देखा। वो समझ गया कि ये मदीना का मुसलमान है, लेकिन उसे ये भी खतरा महसूस हुआ कि ये असवद का कोई मुखबर भी हो सकता है। गदागर ने कहा, मत घबरा फिरोज, मैं तुझ पर एतबार करता हूँ, तू मुझ पर एतबार कर। मैं तुझको अपना नाम बता देता हूँ, कैस बिन हुबैरा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। फिरोज ने इश्तियाक से पूछा, क्या तू सच कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे मेरे पास भेजा है? कैस ने कहा, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि वहाँ जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे मिल जाएंगे। फिरोज ने पूछा, तुझे किसने बताया कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ? कैस ने कहा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर रिसालत के शदाइयों की आंखों में जो चमक पैदा होती है वो मैंने तेरी आंखों में देखी है। कैस ने कहा, तेरी आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही आ गई है। फिरोज ने कैस से कहा कि वो चला जाए।
उसने कैस को एक और जगह बताकर कहा कि कल सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले वो वहाँ बैठा गदागरी की सदा लगाता रहेगा। अगली शाम फिरोज उस जगह से गुजरा जो उसने कैस बिन हुबैरा को बताई थी। फिरोज के इशारे पर कैस गदागरों के अंदाज से उठकर फिरोज के पीछे पीछे हाथ फैलाकर चल पड़ा। फिरोज ने चलते चलते इधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचा देना कि आप अलैहिस्सलाम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी अस्वद अंसी के साए में बैठा है, और मैं हैरान हूँ कि इतनी जंगी ताकत के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया। कैस ने कहा, हरकल का लश्कर उर्दन में हमारे सर पर खड़ा है, हमारा लश्कर रूमियों पर हमला करने जा रहा है, क्या हम 2 आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे। फिरोज ने पूछा, क्या तूने ये सोचा है कि 2 आदमी क्या कर सकते हैं। कैस ने जवाब दिया, कत्ल। फिर कहा, मुझसे ये ना पूछना कि अस्वद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है, क्या तूने अपने चचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया है। फिरोज चलते चलते रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। उसने कहा, तूने मुझे रोशनी दिखा दी है, कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरी चचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया है, ये काम मैं करूंगा, तू अपना काम करता रहे। जा कैस, जिंदा रहे तो मिलेंगे। मौर्रिखों ने लिखा है कि फिरोज के दिल में अस्वद की जो नफरत दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई। उसने अस्वद अंसी के ईरानी सालार कैस बिन अब्दगोस और दाजोया को अपना हमराज बना लिया। अस्वद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था जो उसके साथ रहता था। अस्वद के मुहाफिज उसे हर वक्त अपने नरगे में रखते थे। सोच सोच कर उन तीनों ईरानियों ने ये फैसला किया कि आजाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आजाद के हाथों न कराया जाए। आजाद तक रसाई आसान नहीं थी। अस्वद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी उसे दिल से पसंद नहीं करते। उसने उन पर भरोसा कम कर दिया था। आजाद और फिरोज की वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आजाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत की ही जरूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का हुसूल मुश्किल न था। फिरोज ने महल की एक अधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया, वो भी मुसलमान थी। फिरोज ने उसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है, अगर वो पसंद करे तो वो उसे अपने यहाँ ला सकता है। फिरोज ने उसे कुछ लालच दिया। एक ये था कि उससे इतना ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा जितना अब लिया जाता है। वो औरत मान गई। फिरोज ने उसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती। उसे कोई राह फरार नजर नहीं आती थी। इस कैफियत में फिरोज की वही खादिमा उसके पास आई। खादिमा ने कहा, मैं किसी काम के बहाने आई हूँ, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूँ। क्या तू अपने चचाजाद भाई से कभी मिली है जो रहमानुल यमन का वजीर है। आजाद ने गुस्सीली आवाज में कहा, क्या तू जासूसी करने आई है। खादिमा ने कहा, नहीं, मुझ पर यह शक न कर कि मैं उस झूठे नबी की मुखबर हूँ। मेरे दिल में भी अस्वद की उतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में। आजाद ने कहा, मैं समझ नहीं सकी कि तू मेरे पास क्यों आई है। खादिमा ने कहा, फिरोज वजीर ने भेजा है। आजाद ने कहा, मैं फिरोज का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अगर उसमें गैरत होती तो वो इस शख्स का वजीर न बनता जिसने उसकी चचाजाद बहन को बेवा किया और उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो उन लौंडियों और बांदियों को अच्छी तरह समझती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मुखबरी करने नहीं आई। उसने खादिमा से पूछा कि फिरोज ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादिमा ने बताया कि वो उससे मिलना चाहता है। आजाद ने उसे एक जगह बताकर कहा कि फिरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हाइल होगी। आजाद ने कहा, उसमें एक जगह एक दरीचा है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फिरोज सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादिमा ने आजाद का पैगाम फिरोज को दे दिया। उसी रात फिरोज महल के इर्द गिर्द खड़ी दीवार के उस मकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा दरीचा था। आजाद उसके इंतजार में खड़ी थी। आजाद ने कहा, तेरी खादिमा पे मुझे एतबार आ गया है, तुझ पे मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तुम मुझे उस वैश्य से आजाद करवाने की सोच रहा है। फिरोज ने पूछा, क्या तू उस वैश्य के साथ खुश है? उससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कोई और नहीं देखा। आजाद ने कहा, तेरा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं, फौरन बता तुझे इतने अरसे के बाद मेरा क्यों ख्याल आ गया। फिरोज ने पूछा, क्या इस वक्त अस्वद के इधर निकल आने का खतरा है या अभी वो तुम्हें? आजाद ने कहा, नहीं, पहरेदारों का खतरा है। अस्वद इस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ा है, उसके पास औरतों की कमी नहीं। फिरोज ने कहा, मैं सिर्फ तुझे नहीं पूरे यमन को आजाद करवाऊंगा, लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। आजाद ने पूछा, मुझे बता फिरोज, मैं क्या कर सकती हूँ? फिरोज ने कहा, किसी रात मुझे अस्वद तक पहुँचा दे, अगले रोज वहाँ से उसकी लाश उठाई जाएगी। क्या तू ये काम कर सकती है? आजाद ने कहा, कल रात इस वक्त के कुछ बाद इस दीवार के पास बाहर उस जगह आ जाना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरा कमरा इस दीवार के बिल्कुल साथ है। तुम दीवार किसी और तरीके से फलांग नहीं सकोगे।
कमंद फेंकनी पड़ेगी, इसलिए रस्सा लेते आना, उसे दीवार के ऊपर से अंदर को फेंकना, मैं उसे कहीं बांध दूंगी, तुम रस्से से ऊपर आ जाना।